శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. వసుదేవ సుతం దేవం தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று இன்று அந்த பகவானுடைய ரோகிணி நட்சத்திரம் கிருஷ்ண பரமாத்மா சித்திரை மாதம் மற்றும் வியாழக்கிழமை குருவாரம் என்று சொல்லுவார்கள். பிரதமை திதி. இப்படி விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். எம்பெருமானை சேவித்தோம். இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டி, பூமி பிராட்டி
இருவரையும் சேவித்துக்கொண்டு நம்முடைய கோரிக்கைகளை அந்த பகவானுடைய திருவடிகளிலே வைத்து சேவிக்கலாம். ஸ்ரீவேங்கடேஷமதி சுந்தர மோகனாங்கம் ஸ்ரீபூமிகாந்தமரவிந்ததலாயதாட்சம் பிராணப்பிரியா பரம பங்கஜ கம்புகண்டம் பிரம்மேஷ வந்தியவரதம் அமிர்தம் பஜாமி. भृग्वत्रिकस्य ममरीजमध्ये स्थित्वासने कुसमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्त्रसारमखिलं विखणो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीचि अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वरदवक्त्रात्या पारिषत्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकं नारायणः पिता यस्य माता जाविहरिप्रिया भृग्वादिमनयः शिष्यास्तस्मै श्रीविकनसे नमः. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवा ननु मन्यतां प्राणानायं या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याः वाचनाख्यङ्क्रमकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्ग करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुरप्तुशुरमानहेषु धरत्सरित्व परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोभिधत्तागं सुतरकं सधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञजा पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविघ्नर्विश्वे देवा अमुञ्चन्दमरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे बुम्बुरणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि पार्श्वेग्निमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कण्ठेपमावाहयामि कुक्षौ आकाशमावाहयामि पुष्पे पुनमावाहयामि आवाहनदेवताभ्यो नमः. वरुणाय नमः. आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः. वाक्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. वरुणाय नमः. प्रजेतसे नमः. रक्ताम्बरधराय नमः. यादस्पदये नमः. वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं संखगेनं सपुष्पवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्. आग्नेयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वेशदात्तं महितो न शम्भो मयिराजन्ते सहोदने दत्तां प्रैष्यामतीशो विबधानामनादर्यामि सस्तां दरितां तधातु पद्माकारमण्डले. ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि. ओं भुवः शान्तमावाहयामि. ओं स्वः हरमावाहयामि. ओं भूर्भुवः स्वः अमितमावाहयामि. नित्यानुभागिरमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे दिगामावाहयामि. सूत्रपति दिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमाप्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदसेपदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्म
कर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य यत्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरातनं तद्विप्रासोऽपि मन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्वरस्य त्रिविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोपव्युहं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् न्याह एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्किङ्करं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपरे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनगिन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्म हव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधानविदा वर्तयन्तः सतञ्जीवेम सरतः समीराः ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाग्नया भगवत्किङ्करं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो पश्यतमोरसस्तस्य भार्यते हनः विशतेन बादरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्याक्षयाय जन्मथा आपोचन यथा जनः ॐ पवमानस्ववर्चनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनबोधया पुनन्त विश्व आजवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण बनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्मेस्तनवो वेदपृष्ठाः तयामदन्तस्तमार्त्येषु वजक्तस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपचसापयोभिः हर्दावरी जिग्निजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवम्बभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीर्ध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिडम्बातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पिरमधोदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि कृपयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हिदं पापमानीर्तिशन्तुनः इमल्लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हिदं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वरीते सह वा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणस्समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातमेधा मूर्तिगिन्त्या पुनातु तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषणं शन्नो अस्तुद्पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिश देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिश वासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिश ग्रहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यान्तिस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्तिश दिग्निस्संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिर्यस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा
ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषर्विप्राणां महितो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्तुतिर्मणानागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वास्तोष्पदे प्रदयानि हस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो चिशस्वशन्न येधिद्विपदे सञ्जतुष्पदे वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அதாவது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவஜனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். இன்று ரோஹிணி நட்சத்திரமாகையால் அந்த கிருஷ்ண பகவானுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு மாதமும் வருகிறது. அதேபோல் இந்த சித்திரை மாதத்திலும் இந்த ரோஹிணி நட்சத்திரத்தன்று அந்த கிருஷ்ண பகவானை சற்று நினைத்து பார்த்து அவனுடைய லீலைகளை எண்ணி மனமகிழ்ச்சி அடைந்து அவனுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்யலாம். தர்மராஜனான யுதிஷ்டிரர் 3வது அஸ்வமேத யாகம் செய்ய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய தொடங்கிவிட்டார். தன்னால் போர் நடந்து அதிக அளவிலே பல உயிர்கள் சம்ஹாரம் செய்யப்பட்டதால் பிராயசித்தம் செய்து கொள்வதற்காக வியாச பகவானால் கூறப்பட்ட உபாயம்தான் இந்த அஸ்வமேத யாகம். முதல் 2 முறை போல் இந்த முறையும் அஸ்வமேத யாகம் குதிரை திக்விஜயத்திற்காக விடப்பட்டது. எப்பொழுதும் போல் குதிரையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அர்ஜுனனிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டது. மந்திரிக்கப்பட்ட குதிரையை யாரும் செலுத்தி கொண்டு போக வேண்டும், அதாவது என்கின்ற அவசியமில்லை. அந்த குதிரை எந்தெந்த ராஜ்யங்களுக்கு செல்ல விருப்பப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் சுற்றி வரும். அந்த குதிரையும் சாமானியமாக ஒரு ராஜ்யத்திற்குள் சென்று விடாது. தன்னை தடுக்கும் திறன் உள்ள மன்னர் இருக்கும் ராஜ்யத்திற்குத்தான் குதிரையும் செல்லும். குதிரையை தடுக்கும் திறன் இருந்தாலும் பாதுகாவலனாய அர்ஜுனன் இருக்கும் பொழுது யாருக்கும் அத்தனை தைரியம் வரும். ஹம்சத்வஜன் என்னும் அரசன் ஷாம்பகபுரி என்னும் மலை பிரதேசமாக இருந்த நாட்டை ஆண்டு வந்து அந்த ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாடு தர்ம வழியிலே நடந்து தன் மக்களை மகிழ்ச்சியோடும் மனநிறைவோடும் வைத்தானாம். அந்நிய பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு அரசை பெருக்கிக் கொள்ளும் அராஜக ஆசை அவனிடத்தில் இல்லை. அப்படி ஆனால் ஒரே ஒரு ஆசை, அது பேராசையாக கூட கருதலாம். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். ஓம் பூः भूर्भुवस्वरं सदैव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि प्रतिसरबन्धनदेवताराधनं करिष्ये। ओं यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानर्विपथा विराजन्ने तम्मयिदोजायस्याननाग्निविपणानि वदन्तु। ओं शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि। शेषाय नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतर नर्वणाः स्वस्ति भूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सूचेतुना स्वस्तये वायं पप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमधा विव पुनर्तथदाज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोनावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्। ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே
இதோ இப்பொழுது ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். அப்படி அவன் யாருக்கும் ஆசைப்படவில்லை. ஆனால் விராட் ஸ்வரூபனான ரிஷிகேசனின் பாததூளி சம்பகபுரியில் பட வேண்டும். அவரது பாத கமலங்களை தான் மட்டும் அல்லாமல் தன்னுடைய நாட்டு பிரஜைகளும் தரிசனம் செய்யும்படியாக அந்த கமலக்கண்ணன் கருணை புரிய வேண்டும் என்பதுதான். புண்ணியத்தை கூட தன் பிரஜைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அப்படியொரு அந்த மனது அந்த மன்னருக்கு இருந்தது. யுதிஷ்டருடைய யாக குதிரை தன் நாட்டு எல்லைக்குள் நுழைந்திருக்கிறது என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் அம்சத்வஜனுக்கு பேரானந்தம் பிடிபடவில்லை. அந்த அக்ஷர புருஷனே இந்த குதிரை வடிவிலே வந்து தன்னையும் தன் பிரஜைகளையும் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் என்று மேலான எண்ணத்திலே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாராம். யுதிஷ்டிரர் செய்யப்போகும் இந்த அஸ்வமேத யாகத்திற்கு ஸ்ரீமன் நாராயணனே உதவி செய்கிறார். அவர் கண்காணிப்பிலே நடக்கும் யாகத்திற்கு இந்த குதிரை வரவில்லை என்றால் நிச்சயம் அதை தேடும் பணி தொடங்கும். பல வழிகளில் தேடியும் கிடைக்காவிடில் அந்த கண்ணனே குதிரையை தேடி வருவார். எப்படியாவது அவரை நம் தேசத்திற்கு வரவழைக்க வேண்டும். ஆகையால் இந்த குதிரையை சகல மரியாதையுடன் அழைத்து சென்று மேலான சேவையை செய்து பாதுகாத்து வாருங்கள் என்று தன்னுடைய புதல்வர்களுக்கு, அதாவது குழந்தைகளுக்கு ஆணையிட்டான் அம்சத்வஜன். ராஜ தர்மம், ஆச்சார விதி, நாட்டின் பாதுகாப்பு ஆகிய அனைத்தும் கசடர கற்ற அந்த மன்னன் இப்படி ஒரு செயலை செய்வார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. முனிசிரேஷ்டர்கள், தவ புதல்வர்கள், மன்னரின் அன்பு சூத்திரத்தால் கட்டுண்ட பிரஜைகள் எல்லோருக்குமே ஒன்று மட்டும் புரிந்தது. அது என்னவென்றால், யுக்தி ஆத்ம தரிசனத்திற்கு அடிக்கோலும் சாதனமே அல்லாமல் வேறு என்னவாக இருக்க முடியும்? குதிரையை மீட்பதற்காக அந்த லீலாமயமான மனும் பாண்டவர்களும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களும் சம்பகபுரிக்கு வருவார்கள். அவர்கள் வரும் பொழுது அம்பு சரத்தினால் தங்களுக்கு மரணம் சம்பவிக்குமேயானால் அதையும் அவளுடன் ஏற்று பூமியை புனிதப்படுத்த அனைவரும் தயாராக இருந்தார்கள். சம்பகபுரிக்குள் குதிரை நுழைந்து திடீரென்று வேகமாக முன்னேறுவதைக் கண்ட அந்த காவலாளர்கள் பின்தங்கத் தொடங்கினார்கள். சம்பகபுரியில் ராஜ்யத்திலே குதிரையை தடுத்து நிறுத்தும் அளவிற்கு பராக்கிரமசாலியான வீரன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனன் குதிரையை தொடர வேண்டாம் என்று தன் ஆட்களுக்கு ஆணையிட்டானாம். இருந்தாலும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்றவன் அல்லவா அந்த தனஞ்சயன். ஆகையால் குதிரையை தடுத்தால் அதன் விபரீதம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எவ்வளவோ சொல்லியும் மன்னரின் கௌரவமெல்லாம் பார்த்தசாரதியின் மீதே இருந்ததாம். யுதிஷ்டரிடம் குதிரையை ஒப்படைக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த பார்த்தனுடையதல்லவா. ஆகவே நகரத்திலிருந்து சிறிது தூரத்திலே தன்னுடைய சேனைகளுடன் ஒரு கூடாரம் அமைத்து தங்கி போருக்கு ஆயத்தமானான் அர்ஜுனன். அம்சத்வஜனுக்கு நினைத்தது நடக்கப் போவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. உயிர் தோழனின் உயிருக்கு ஆபத்து என்றாலே நீலமேக சியாமளன் வராமலாயிருந்து விடுவான் என்று மன்னர் மக்களுக்கு அந்த ஆணையை அறிவித்தார். அதாவது போர் ஆயுதம் ஏந்திய ஒவ்வொரு க்ஷத்திரியனும் அடுத்த நாள் காலை சூரியன் உதயமான சிறிது நேரத்திற்குள் போர் ஆயுதங்களுடன் அரச மாளிகையின் முன் வரவேண்டும் என்றும், அப்படி வர தவறியவர்களுக்கு கொதிக்கும் எண்ணெயை கொப்பரையில் போட்டு விடுவதாகவும் அறிவித்தாராம். இதோ எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த கண்ணபிரான் அங்கே ஆயர்பாடி மக்களை மட்டுமல்ல, உலகம் முழுதும் உள்ள தன்னுடைய பக்தர்களை ரட்சிப்பதிலே வல்லவன். அப்படித்தான் அந்த அர்ஜுனனை ரட்சிப்பதற்காக வருவான் என்று அம்சத்வஜன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான். அடுத்த நாள் சூரியோதயம் ஆனவுடன் அரச மாளிகையின் அழைப்பு வந்ததும் க்ஷத்திரியர்கள் அரசனின் ஆணைப்படி உயிர் விடவும் தயாராக இருந்தார்கள். அந்த அரசனின் புதல்வர்கள் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன அவர்களும் வந்திருந்தார்கள். ஒரே ஒருவனை தவிர தன் மனைவியுடன் தனிமையில் உல்லாசமாக இருந்த சுதன்வா அப்பொழுதுதான் தன் மாளிகையிலிருந்து கிளம்புவதற்காக ஆயத்தங்கள் செய்து கொண்டிருந்தான்.
கொப்பரையில் ஒருபுறம் எண்ணெய் கொதித்த வண்ணம் இருக்க, தர்மசீலரான அம்சத்வஜனுக்கு புத்திரனுக்கு மட்டும் என்ன தனி சட்டமா என்று, ஆகையால் அவரின் ஆணையின்படியே போருக்கு முன்வராத தன் மகன் சுதன்வாவை கைது செய்து வந்து எண்ணெய் கொப்பரையில் இடும்படி மன்னர் அந்த படை தலைவரிடம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை தெரிவித்தாராம், கட்டளையை. அப்படி சுதன்வாவின் மனைவி பிரபாவதிக்கு தன்னால் தன் கணவர் உயிரிழக்க நெடுகிறது என்று பயத்திலே பூஜை அறையிலே ஸ்ரீஹரியை குறித்து தவற்றை பிதற்றி, அதாவது தன்னுடைய தவறினை மன்னிக்கும்படி கேட்கிறாளாம். விடியற் காலையிலே நீராடி பெரியவர்களிடம் ஆசி பெற்று போருக்கு ஆயத்தமான சுதன்வாவை மனைவி பிரபாவதி, அர்ஜுனனை எதிர்த்து நின்றால் உயிருடன் தாங்கள் திரும்பி வரமாட்டீர்கள், எனக்கு சந்தேகம். ஒரு முறை கூட தங்கள் ஸ்பர்சம் இன்மேல் படாததால் தங்களுக்கு பிறகு நமக்கு வாரிசில்லாமலே போய்விடும் என்று பயமும் இருக்கிறதாகவே என்று அவள் தன்னுடைய பயத்தை தெரிவிக்கிறாள். இப்படி கைதியாக தன்முன் தலை குனிந்து நின்ற மகனை பார்த்தார் அரசன். ஸ்ரீஹரியை வரவேற்பதை விட முக்கியம் கொடுத்த சுதன்வாவை எண்ணெய் கொப்பரையில் போட வேண்டும் என்ற அரசரின் ஆணைக்கு குலகுருவும் ஆமதித்தாராம். யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் சுதன்வா கொப்பரையின் அருகிலே வந்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணரை குறித்து சற்று தவம் செய்து அவகாசம் கேட்டான். கண்ணா, நான் காமத்தினால் தூண்டப்பட்டு சிற்றின்பத்தில் ஈடுபடவில்லை. என்னுடைய செய்கையால் என்னை என் மரணத்திற்கு இந்த காரணத்தினால்தான் அழைத்து வந்தது நான் என்று இகழ்ந்து பேசுவார்கள். ஆகவே இந்த அபவாதத்திலிருந்து என்னை நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றான். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்கிறார். ஸ்ரீமதகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயகஸ்ய ஸ்ரீ பூநிலா சமேத ஸ்ரீனிவாச ஸ்வாமினः வைவாஹிக மகோத்சவாக்கியஜகர்மணி ஔபாசனாக்னௌ அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஓம் ஏதோன்விந்திரம் स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् मभक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्यशों यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुनी शुद्धो वृत्नानि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासति मयि देवाद्रमिणमाजिनन्ता मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः पूर्वेरिष्टास्याम मत्यं जिदन्तमजान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभूजदामि देवी षडर्वे रक्णोद विश्वे देवास यहवीर्यद्धं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषति सोमराजन् जातमेदो भुवनस्य रेतयः सञ्जतपसो युध्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादनिहं यवाहकं शमी गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको कृतयो निरग्निकृते समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वा जनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिडाजिक्षिदेवाने. ओम अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं भ्रमं प्रस्तातुषीवतसृजो वेन आवः सपत्न्या पपमा अस्य विष्टा सदस्य योनि मसदस्य विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः. इदवासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्गरमन्यन्द्रात् साधन्यं विदत्यकं च हेगन्तश्रवणं ज्योतिराज तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदवासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य वृत्ति सप्तर्षीरागं सुकृतां यत्र प्रेमयज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य वृत्ति यजमानोऽस्तु सप्तर्षीरागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्प्रेमयज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य वामने स्तः परशस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने भवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा
महाविष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणीयज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणीयज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया कोपप्रणीतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं वदन्ति ईर्गतवृष्टावदागसहस्रभोषं यजमानेन्यञ्चतीः कोवो जनक्ते समो जनक्ते संविशन्तान्ते वीर्वश पात्राणि देव यत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपहभूपस्पृश्या श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तिनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि वैवाहिका यज्ञम औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञ विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि आपावोपस्पृश्याम् श्री महाविष्णवे दृष्टनरोभामि बृहत्प्रये दृष्टनरोभामि मित्रागे दृष्टनरोभामि वरुणागे दृष्टनरोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनरोभामि अश्विभ्यां दृष्टनरोभामि पूष्णे दृष्टनरोभामि कक्षागे दृष्टनरोभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टनरोभामि वैवा उपासन यज्ञागे दृष्टनरोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनरोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनरोभामि आद्यन्त्रिप्यधिस्रयामि तिरन्त्रिप्यधिस्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमजवारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनादयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनादयः चित्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनव सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियतं च प्रकृतं च अर्पुदं च न्यर्पुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्च इमामे अग्निष्टकाधेनव सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय भयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रजयापशभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविधप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिवासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जक्रमणे औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थं हतो देवादशट्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेद प्रसुभा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानधरेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्राजो विपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदक्
स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः पतिमेकादशङ्कृधि संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानम् अपकल्पमानम् अपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतां चित्रः केतुप्रभानाभान् सम्भाने ज्योतिष्मागस्तेजस्मानादभग्यस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ओम स्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिवीं यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजोपरि
प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदेवपुरे विराजते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिमालिते लोकालोकाचलबलहिते नलवनेक्षुसुरासर्पितशिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपदे माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतिगम्बुरहारीरावृतपत्राश्वकेतुकमालकहिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्तिपुण्डाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यह जन्म निचाये तत्क्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरिदक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहित धामादव संघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपरवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्त गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रप्रकारेण आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयवानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नवान् और्ववेदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संगलमदनयां उत्तरभृगुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां
दास्यामि ऋग्यजस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संगल्वदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकदिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. கிருஷ்ண பகவானே கோவிந்தா கோவிந்தா. அம்சத்வஜனின் அந்த அரசவையிலே சுதன்வாவை கொல்ல வேண்டும் என்று அர்ஜுனனுக்கு, அதாவது அந்த குதிரையை பார்த்தனின் சாரதியாய் தன் தோழனை காக்க பார் கடலுக்குள் பயித்து வந்த பரமன் தேரில் ஏறினான். தன் கருணைக்காக கசிந்து காத்து கிடப்பவர்கள் இருவர் என்றாலும் இருவரையும் காக்கும் பொறுப்பு கண்ணனுக்குத்தானே. யாருக்கு அவர் உதவப் போகிறார் என்றால் அந்த அரங்கனின் மகிமையை யார் அறிவார்? இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணனின் உதவியுடன் முதல் 3 அம்புகளிலேயே சுதன்வாவை வென்று விடுவதாக சபதம் செய்த அர்ஜுனனை ஏளன சிரிப்புடன் சுதன்வா எதிர்கொண்டான். ஆலிங்கனனையும் ஆயர்களையும் அந்த காத்தலால் தனக்கு கிடைக்க பெற்ற புண்ணியத்தை முதல் அம்பில் தாரை வார்த்து அந்த அம்பை சுதன்வாவின் மேல் செலுத்தும்படி கூறினான் கோவிந்தன். ஜெய் கோவிந்தா என்று சுதன்வா எய்த அம்பானது அர்ஜுனனின் பாணத்தை முறித்தது. ராமாவதார புண்ணியம் அனைத்தையும் 2வது அம்பிலே ஏற்றி ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று கூறி பதிலுக்கு சுதன்வா எய்த அன்பு காண்டீபனின் 2வது பாணத்தையும் முறித்தது. தனஞ்சயன் சபதம் செய்தது போல் 3வது அம்பிலாவது சுதன்வா மடிய வேண்டும். சுதன்வா ஸ்ரீ விஷ்ணுவிடம் விண்ணப்பித்தது போல் அர்ஜுனனின் அம்பினால் சுதன்வாவின் தலையை கொய்து அந்த தலை தாமோதரனின் கையிலே இருக்க வேண்டும். இந்த முறை விந்தை புரியும் நந்தகுமாரன் வால் பக்கம் அதாவது பிரம்மாவையும் நடுவிலே காலனையும் ஸ்தாபித்து தானே கூரான முன்முனையிலே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார். காண்டீபத்திலிருந்து எழுந்த பாணமானது சுதன்வாவை நோக்கி வேகமாக முன்னேறியது. இம்மைக்கும் 7 பிறவிக்கும் பற்றான் பரந்தாமன் அமர்ந்த அந்த அம்பின் கூர்மையானது சுதன்வாவின் கண்டத்தில் தைத்தது. என்னை ஆட்கொள் கிருஷ்ணா என்று கூறியபடி அந்த கொய்யப்பட்ட தலை பூமியிலே விழுந்தது. அடுத்த கணமே அந்த தலை மேலே எழும்பி தேரில் அமர்ந்திருந்த மாதவனின் மலரடியில் விழுந்ததாம். தேரில் கயிற்றை விட்டு அந்த தலையை தன் 2 கைகளாலும் ஏந்தியபடி நகரினுள்ளே செல்லத் தொடங்கினார் அந்த சுந்தர புருஷன். மாதவனின் மலர் பாதங்கள் தங்கள் மண்ணில் பதியப் போகிறது என்ற செய்தியை கேட்ட மன்னன் மகன் மடிந்த துக்கத்தை கூட பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய மக்களுடன் ஆயர்பாடி கோனை ஆரவாரத்துடன் வரவேற்க புறப்பட்டாரும். அந்த நாளும் வந்திடாதோ என்று காத்திருந்த மன்னன் பிறவி பயனை பெறப்போகும் பெருங்களிப்பில் இருக்கிறார். உதிர சம்பந்தம் உள்ள தன்னுடைய மகனை மடிய கொடுத்தும் மாய முரளீதரன் மலர்பாத தரிசனத்திற்காக காத்திருந்த அந்த பற்று நிலையற்று பரம பாகவதரையும் கண்ணன் கண்ணுற்றாராம். நதிக்கரையிலே சுதன்வாவின் சடலத்தை சேர்த்த பிறகு தன்னுடைய மலர் கரங்களால் ஏந்தி வந்தவன் தலையை உடலோடு பொருத்தி அவனுக்கு அழிவில்லா முக்தியை கொடுத்தளினார். அனந்தசயனன் சுதன்வாவின் இறுதிக் கடனை தானே செய்ய விரும்பி தன்னுடைய திருக்கரங்களால் அக்னி பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தாராம். தான் பெற்ற இன்பம் இந்த உலகமும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக துவாரகாபுரி வாசனை
தன்னுடைய இருப்பிடம் எழுந்தருளச் செய்த மன்னர் அம்சத்வஜனின் பிறவிப் பயனை முழுமை அடைய செய்த சுதன்வாவின் சேவையை விவரிக்கவும் வேண்டுமோ? அந்த சடலத்திலிருந்து கிளம்பிய ஓர் ஒளி ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் திருமுகத்தில் பிரவேசித்ததாம். அம்சத்வஜனிடமிருந்து அஸ்வமேத குதிரையை பெற்ற ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், சேனாதிபதிகள் அஸ்தினாபுரம் திரும்பினார்கள். யுதிஷ்டரின் 3வது அஸ்வமேத யாகம் முறைப்படி தொடங்கி இனிதே நிறைவேறியது. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாயத்த துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாஸ்து சம்பவாமி யுகே யுகே என்று सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता ताणहस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम् प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि औपासनाग्नौ प्रधान होमं करिष्ये। अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुभा। ओम अग्निदेव प्रथमो देवता नागंसोऽस्य प्रजामुञ्जनमृत्यभाषात् तदैकं राजावरणो न मन्यतां यथे यक् स्त्रीपौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा। एवं मे वृणस्वधेवमत्याचमृणया तामवस्यराजके स्वाहा। तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते किटमानो हविर्भिः हेडमानो वर्णे हवोदृशकं समान आजु प्रमोषे स्वाहा। तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजासतिष्ठाः यजिष्ठो वह्निनमस्सोषणानो विश्वान् द्वेषाकं सिप्रममत्यः स्मत्स्वाहा। सत्वन्नो अग्ने मम भवोदेनेदिष्टो अस्यापुषतो व्यष्टौ अवजिक्षुणो वर्णकं मृडानो विहमृडीकं सहवोणयेधि स्वाहा। तमग्ने अजास्यासन्मनसाहितः अजासन हव्यमोहिते जानो देहि भेषडिग् स्वाहा। ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा।
ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికమహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్ను లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసువ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య అభిఘార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాకుమ్రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనో ధస్తామమృతాకుం అను విశ్వాబుధత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్వేష స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్థాః అనుమతేన్మమగ్రస్థాః సరస్వతేన్మమగ్రస్థాః దేవసవిదః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికమహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్ను సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదిష్యత్వైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసువా ఓం అతో దేవా అవంతనాయతో విఘ్నర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభే స్వాహా ఇదం విఘ్నర్విచక్రమే త్రేధానధనేపదం సమూఢమస్య భాగం శ్రీ స్వాహా త్రీనిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి విశతకితో ప్రధాని పుష్పశే ఇంద్రస్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివే విచక్షణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో వన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికమహోత్సవాఖ్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసువా ఓం యతస్య కర్మణోతిరేణుజం యత్వాన్యోనిమహాకరం అగ్నిశ్చస్విష్టకృత్వాన్ సర్వగ్రస్విష్టకం జుహదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే జుహదహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే నారాయ స్వాహ అగ్నయే నపతయే స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమస్మై స్వాహ అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతయే స్వాహ యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతగ్నిస్తత్వనరాహార్జాతవేద విజర్షణి స్వాహ పునరగ్నిచక్షుర్ధాతురేంద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అశ్వినాజమం చక్షురాదత్తమక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వషడనిష్టేభ్య స్వాహ భేషరందృశ్చై స్వాహ కృత్యై స్వాహ దౌరాధ్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ రుధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिधसि तेजोषि मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तरिक्मा सप्तर्षे सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयोनीरा पुनर्स्वाघृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टघृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि
मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथ्वीभुक्तं वोचनस्पतिगन्धर्वाप्तश्चैव भुक्तं अग्निर्जेनं वेदर्जेनं ज्योर्जेनं पृथ्वीजेनं वोचनस्पतिगन्धर्वाप्तश्चैव जीर्णं समन्दामरिहरहविडाकृतेन समादित्यवसविस्मरत्मिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथ्वीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितृपितामहः प्रपितामहश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवताभिः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षिता अक्षितमसि मामे वरिशिष्टा कक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीं स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नियतं माजी क्वर्धमत्र मेधामष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुपद वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमदः परिधिमपनया दक्षिणदः परिधिमपनया उत्तरदः परिधिमपनया पश्चिमदो विष्णोः सदनमसि दक्षिणदो विष्णोः सदनमसि उत्तरदो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदिः स्त्रिमं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय रजस्तस्य भार्गदेहनः पशुतीर्ममातरः तस्मा आरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्पथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजां मयीन्द्रियेन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासनाय क्रन्दमयादेव परिपूर्णं तदस्मे प्रायश्चित्तानि चैतानि होमकर्मात्मकानि वैतानि चैतावचैतानां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. குங்குமம் அப்பி குளிர் சாந்தம் மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மணநீர் அங்கு அவனோடும் உடன் சென்று அங்கு ஆனைமேல் மஞ்சனம் ஆட்ட சூழ் கனா கண்டேன் தோழினான் என்று அந்த பாடல்களை பாடிக்கொண்டே வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்தார்கள். அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். பெருமாள் தான் அணிந்த மாலையை தன்னுடைய தேவியான ஸ்ரீதேவிக்கு முதலில் அனுப்புகிறார்.
இதோ மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்திலே 3 முறை இந்த மாலை மாற்றும் படலங்களை நாம் இப்பொழுது சேவிக்கலாம். முதலில் எம்பெருமான் தான் அணிந்த மாலையை தன்னுடைய தேவியான ஸ்ரீதேவிக்கு முதலில் அனுப்புகிறார். ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலைக்காக காத்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். அணிந்து கொண்டு அதே மாலையை மீண்டும் பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறார். அதாவது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி அவருடைய திருவடிகளை அடிபணிந்து அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் பெருமாள் அணிந்து கொண்ட அதே மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்புகிறார். அந்த பூமி பிராட்டி கூட மாலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். சூடி கொடுத்த நாச்சியார் அல்லவா, தான் சூடி அழகு பார்த்து பின் பெருமாளுக்கு மாலையை திரும்பவும் அனுப்புகிறார். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி ஒருவருக்கொருவர் மாலா பரிவர்த்தனம் செய்து கொண்டு பிறகு இரு தேவியரையும் தன் பக்கத்தில் அமர்த்தி கொள்ளுகிறார் பெருமாள். சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாலா பரிவர்த்தனத்தை முடித்து அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பெருமாளுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அர்ச்சகர் தன் தலையில் பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு வெள்ளி வட்டிலில் அக்ஷதையை எடுத்து பெருமாளின் சிரசிலும் தாயார்களின் சிரசிலும் மீது தூவி அவர்களது பாதங்களை அடிபணிந்து நிற்கிறார். இத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது இனிதே நடந்தேறியது.
विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।